Okay, so let's start with new topic, that is trace mineral part 2. In last lecture, I think I have covered iron from mineral part or mineral trace mineral part. So the rest is copper, zinc, cobalt, selenium, molybdenum, selenium, fluorine, and there are many. So let's start with the second most important, rather very helpful in case of livestock, or particularly a small ruminant, and that is copper. In combination with iron, copper is also required for hemoglobin synthesis. Okay, copper is also somewhere responsible for or helpful in hemoglobin synthesis. Therefore, it is helpful in your respiratory chain or oxidation reduction reaction. And this is it also occurs as hemocuprin required in RBC maturation. Other than hemoglobin synthesis or hemoglobin part of hemoglobin, so copper is also a part of cytochrome oxidase, uricase, tyrosinase, lysyl oxidase, ascorbic acid oxidase. So you can see copper is a integral part of many oxidative enzymes, and each and every enzymes have their own role, like cytochrome oxidase in ETS, in uricase, tyrosinase. Tyrosinase is responsible for tyrosine conversion of tyrosine to melanin. Likewise, lysyl oxidase is responsible for your mucopolysaccharide synthesis. So, other than copper is required for hepatic synthesis of celluloplasmin and erythropoietin. Again, it is related with hemoglobin synthesis or iron metabolism. Deficiency diseases are anemia, as copper is responsible for hemoglobin synthesis or help in iron absorption. Therefore, due to deficiency of copper, it leads to anemia. And anemia is of different type in different animal. Like in pig and chicken, this is macrocytic hypochromic. I'm sure you must be knowing what is macrocytic. That is cells size is decreased, but the color, or you can say your pigment, is of normal size. Another one is macrocytic and normochromic anemia in calves. Another one is depigmentation. Again, this is clear cut rule of enzymes, copper dependent enzymes in case सर of नॉर्मोक्रोमिक क्या होता है? नॉर्मोक्रोमिक मींस कि जो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल होगा, वो कम नहीं होगा. क्रोमिक मींस क्रोम मींस कलर, कलर तो मींस. फिर सर ये माइक्रोसाइटिक क्यों बोला? माइक्रोसाइटिक जो सेल हो जाते हैं, आरबीसी के साइज जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं. हमें क्लियर? तो छोटे तो सर जब नॉर्मल है तो फिर छोटे क्यों हो गए? आरबीसी इज डिफरेंट थिंग, हीमोग्लोबिन इज डिफरेंट थिंग. कंफ्यूज मत करो. तो हाँ, तो आरबीसी छोटे हो गए बट हेमोग्लोबिन नॉर्मल है. नॉर्मल साइज है उसके, ठीक है. हीमोग्लोबिन है वो जो क्रोम है दैट इज ऑफ नॉर्मल कंसंट्रेशन, बट साइज जो होते हैं वो छोटे हो गए. क्लियर हुआ? आरबीसी का साइज, सेल का साइज, और दूसरा क्या हो गया, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन क्रोम का. तो दोनों में अगर फर्क होता है तब यहाँ पे मैक्रोसाइटिक में, यहाँ पे मैक्रोसाइटिक होगा साइज तो छोटे हो गए, लेकिन यहाँ पे क्रोम यानी हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम होता है. क्लियर हुआ? हाइपो, हाइपर. तो ये एनिमल Another one is depigmentation. Depigmentation में tyrosinase, as copper is part of integral part of tyrosinase enzyme, and tyrosinase is responsible for conversion of tyrosine to melanin. Tyrosine क्या है? Tyrosine क्या है? सर अमीनो एसिड. अमीनो एसिड है सर. तो एक बार कई बार आपको पूछा जाता है कि जैसे बहुत बार सवाल आएंगे इंटर कन्वर्शन और इंटर रिलेशनशिप, लाइक मिनरल विटामिन, मिनरल अमीनो एसिड. तो यहाँ पे आप इसकी चर्चा कर सकते हो. दिस इज एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर कन्वर्शन ऑफ टायरोसिन टू मेलानिन, एंड मेलानिन इज ए पिगमेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर ब्लैक कलर और पिगमेंटेशन ऑफ स्किन. तो ये जो आप बफेलो का स्किन देख रहे हो कि नॉर्मल कलर ब्लैक है, बट ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ कॉपर इट
it leads to deficiency of tyrosinase and ultimately it led to depigmentation, leukoderma, और sometimes around eye के around में भी ये खास करके कैटल में देखा जाता है. Another one is this is stringy or steely wool. Again ये terminology है stringy. If you talk about quality of fiber, चाहे वो ऊल हो या कोई भी फाइबर के, उसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. फर्स्ट वन इज स्टेपल लेंथ. एलपीटी में पढ़ोगे अच्छी क्वालिटी के वूल जो होते हैं उसके तीन चार कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. फर्स्ट वन इज अब स्टेपल लेंथ की जितनी लंबाई होगी उतना अच्छा वो वूल माना जाएगा. दूसरा होता है वेवीनेस. एक स्प्रिंग होता है ना, इन आप पेन में जो लगाते हो तो स्प्रिंग होता है, दैट इज वेवीनेस. जितना ज्यादा वेवीनेस होगा, जितना ज्यादा क्रिम्प होगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर में अगर सपोज करो कि 10 क्रिम्प साइज है, इतने वेवी है, यानी कि उसकी उस वूल की स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होती है. कई बार आपने देखा होगा कि ब्लैंकेट में जो वूल होता है जिसको आप कारपेट वूल बोलते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट देखा है, मोटा मोटा दिखता है, बट आपके पश्मीना में या इवन जो आप अंगोरा या कुछ नाम सुनते होंगे, हाई क्वालिटी होती है, वो हाई क्वालिटी वूल होती है, दैट्स व्हाई प्राइस इज हायर साइड. तो यहाँ पे क्या है, एक और भी चीज होती है, मेडुलेशन कहते हैं. एंड मेडुलेशन मतलब कि एक कॉर्टेक्स हुआ, एक फाइबर का जो लेंथ होता है उसमें ऊपर का पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं और जो अंदर का पार्ट होता है मेडुला. तो अच्छी क्वालिटी का जो वूल होता है उसमें मेडुला कम से कम होना चाहिए और कॉर्टेक्स ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए. तो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक, बट कॉपर डिफिशिएंसी लीड्स टू स्ट्रेंथनिंग, या यूं कह लो कि लेस इन स्ट्रेंथनिंग ऑफ वूल. और वो किसके कारण होता है, दैट इज ड्यू टू लैक ऑफ नंबर ऑफ क्रिम्स. यानी कि 1 सेंटीमीटर में जितनी बार कॉइलिंग होगी उसी को कहते हैं हम क्रिम्स कहते हैं. तो ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ कॉपर इट लीड्स टू स्ट्रिंगी और स्टीली वूल, दैट इज लैक ऑफ नॉर्मल क्रिम पर सेंटीमीटर. थर्ड वन इज मोस्ट इंपोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं. ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ कॉपर इट लीड्स टू इंजोटिक अटेक्सिया और स्वे बैक. ये याद रखना, कुछ नाम है, ये नाम आपको याद होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछे जाएंगे, यहाँ भी पूछे जाएंगे, आके आपको जब आप मेडिसिन पढ़ोगे तब भी पूछे जाएंगे, और जेआरएफ की तैयारी जब करना शुरू करोगे तो ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं. ये जो कि श्योर शॉर्ट आप बना सकते हो. एक चार्ट बना लेना, मिनरल विटामिन इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, एक तरफ मिनरल्स, उसके डिफिशिएंसी डिजीजेस के नाम कम से कम पते होने चाहिए. तो दिस इज एंजियोटिक अटेक्सिया और स्वे बैक इन लैम्ब, कीट और काफ्स. खास करके ये जो ग्रोइंग एनिमल्स होते हैं, खास करके जिनका ग्रोथ हो रहा होता है, या यूं कह लो कि बिफोर गिविंग बर्थ, दिस इज ड्यू टू डिजेनरेटिव चेंजेस ऑफ नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड. अब इसमें क्या होता है, दो तीन चीजें आप बार बार इसको पढ़ने की कोशिश करना. जो स्वे बैक है या जो स्टैगरिंग गेट है, स्टैगरिंग गेट आगे बात करेंगे कि स्टिफ एंड स्टैगरिंग गेट. गेट समझते हो, जीआईटी गेट. एक तो जीएटी गेट होता है, एक जीआईटी. जो आप चलते हैं ना उसी को आप गेट कहते हैं, वॉकिंग स्टाइल. तो ये टाइप ऑफ है. स्टैगरिंग मतलब लग रहा है कि स्टैगर कर रहे हैं, कहीं पे रुक रहे हैं, कहीं लड़खड़ा रहे हैं. तो इसके कारण क्या होता है, दिस इज ड्यू टू कॉपर डिफिशिएंसी, एंड कॉपर इज रिस्पांसिबल टू माइलेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. माइलिन शीथ होता है ना, तो इसकी डिफिशिएंसी से डीमाइलेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होने लगता है, और कई बार ये परमानेंट होता है. तो इसके कारण क्या है कि इसके जो पीछे के पार्ट हैं वहां पे खास करके जो नर्व्स हैं, हर एक का अपना ट्रॉपिकल रीजन होता है कि किस पार्ट को वो इफेक्ट करेगा. तो ये जो पोस्टीरियर पार्ट वाला नर्व है उसको इफेक्ट करता है, एंड दिस लीड्स टू स्टैगरिंग गेट, लड़खड़ा जाती है, और स्वेइंग ऑफ हैंड क्वार्टर जो आपको हिलता हुआ दिखेगा. तो दिस इज डिजीज पार्टिकुलरली लैम्ब में ज्यादा होता है. अनदर वन इज फॉलिंग डिजीज. यहाँ पर भी स्टैगरिंग गेट होगा, और फॉलिंग का मतलब होता है गिरना. यहाँ पे सडन डेथ होता है ड्यू टू हार्ट फेल्योर, कार्डियक फेल्योर होने लगता है. एट्रोफी ऑफ मायोकार्डियम मतलब जो आपके मसल्स टिश्यू ऑफ कार्डियम है वहां पे एट्रोफी मतलब छोटा होने लगता है. कई बार फाइब्रिनेशन होने लग जाते हैं. तो ये दो डिजीज आप याद रखना जो कि पार्टिकुलर है. कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जो कि हर एक मिनरल्स में मिलेंगे या कहीं कहीं. जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एनीमिया पूछूंगा. एनीमिया कितने तरह के होते हैं? एनीमिया किस के डिफिशिएंसी से होगा? आयरन एंड कॉपर. आयरन एंड कॉपर, वेरी गुड. और
विटामिन B12, सेलेनियम, इतने 3 तरह के होते हैं ना, तो ये फॉलिक एसिड, अब तो हो गया ना। उसी तरह आपको मैं पूछूंगा कि रिकेट्स कितने तरह के होते हैं, रिकेट्स किस किस के कारण होते हैं? विटामिन डी डिफिशिएंसी, विटामिन डी की वजह से। कैल्शियम की डिफिशियंसी से भी होगा, फास्फोरस की डिफिशियंसी से भी होगा, विटामिन डी की भी डिफिशियंसी, it may be of different kind. So likewise, but these deficiency diseases are particular to copper. One is angiotic ataxia, and another one is Swayback, which is particularly सर ये सारे जो डिजीज हुआ एक्सक्लूसिवली इसी की वजह से होता है कि और भी डिफिशियंसी की वजह से ये सारे डिजीजेस हो सकते हैं? ये डिजीजेस जो स्वेबैक है वो केवल कॉपर की डिफिशियंसी। अटैक्सिया और भी समय में होगा, जस्ट लाइक आप न्यूनेटल अटैक्सिया पढ़ोगे या आगे भी मैग्नीशियम की डिफिशियंसी में पढ़ा होगा, बट स्वेबैक इज पार्टिकुलर टू कॉपर। ओके सर फॉलिंग डिजीज नाम जो हो गया ना, फॉलिंग डिजीज, देखो कार्डियक फेल्योर तो हर एक सारे कारण से हो सकते हैं, कार्डियक फेल्योर के यस सर और एनिमल बीइंग में, बट ये जो फॉलिंग डिजीज है दिस इज पार्टिकुलर टू copper deficiency. Okay. Most important question of copper for you 2 marks to 5 marks question. ध्यान से सुनना, हिंदी में बात करूंगा। कई बार इंटरेक्शन ऑफ मिनरल्स बताए पूछे जाते हैं, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, जब चाहे वो एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, एंड ये क्वेश्चन डिक्लेयर है, कभी ना कभी मैं पूछूंगा। Copper, molybdenum, sulfur interrelationship or interaction. Interactions of minerals are responsible for deficiency of one or other. Like आप अगर रिमेम्बर करो पीछे वाला चीज, 2-3 मिनरल के इंटरेक्शन बताओ। आई एम गोइंग वेरी स्लो। इंटरेक्शन ऑफ मिनरल्स के एग्जांपल बताइए जो आपने मेजर मिनरल्स में पढ़े हैं, पीछे पढ़े। This means one in mineral affects the activity or physiological activity or viability of other. Example. Come on. अभी पढ़ा है आपने मिनरल्स, एक डिजीज भी पढ़ा होगा, बिग हेड डिजीज, दुर्गा चांदनी, विद्या, पीयूष, आसफी, आकांक्षा। दिस इज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ मिनरल्स। क्या बताया था कि फास्फोरस कैल्शियम के इम्बैलेंस के होने के कारण पाराथायरॉयड ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है टू, दिस इज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। क्लियर हुआ? नहीं? यस। चलो इससे क्लियर हो जाएगा। कॉपर, मोलिब्डेनम एंड सल्फर इंटररिलेशनशिप। Molybdenum and sulfate are antagonists of copper. If molybdenum and sulfur is in higher quantity or in abundance, it can lead to deficiency of copper. How? Sulfur के कारण क्या होता है? Sulfide is formed by Raman microorganism, and this is particular. This is more specific to ruminants. Sulfur convert क्या हो जाता है? Sulfide में हो जाता है due to microorganism, rumen microbes, rumen bacteria, and this sulfide binds with molybdenum. Molybdate to binds with to form with thiomolybdate. पहले क्या बना? सल्फर से सल्फाइड बना। सल्फर एच मोलिब्डेट से मोलिब्डेनम से रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही सल्फाइड बन गया देन इट बाइंड्स विद मोलिब्डेनम टू फॉर्म thiomolybdate, एंड thiomolybdate जब ये मॉलिक्यूल बन गया, ये कॉपर के साथ बाइंड करता है और ये जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है। दैट इज कॉपर thiomolybdate इज इनसॉल्युबल। अब बताओ कि ये जो इनसॉल्युबिलिटी हो गई, जो कॉपर थायोमोलेट का कॉम्प्लेक्स बना जिसमें फिर कॉपर भी इंटीग्रल पार्ट है, तो वहां पे क्या होगा? कॉपर की डिफिशियंसी हो जाएगी, कॉपर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, देयरफॉर लिमिटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ डायरेक्टली कॉपर। कॉपर आपने सफिशिएंट अमाउंट में दिया है, लेकिन साथ में क्या है? सल्फर भी और मोलिब्डेनम है, खास करके मोलिब्डेनम। Then molybdenum will bind with sulfide to form thiomolybdate, and thiomolybdate will ultimately bind with copper to form insoluble. Soluble होता तो शायद कॉपर डिसॉल्व होके यूटिलाइज भी हो जाता है। So this is interrelationship of copper, molybdenum, sulfur. Am I clear?
Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Another important mineral is zinc. जब कभी भी आप जिंक याद करते हो, you remember this enzyme, carbonic anhydrase. This is the fastest enzyme, and जिंक जो है वो बहुत सारे एंजाइम्स की एक्टिवेटर के रूप में काम करता है. So it is helpful in antioxidant and immune डिफेंस सिस्टम. और इसमें एक और चीजें हैं, एक डिस्म्यूटेज पढ़ोगे बाद में मैं बताऊंगा. कॉपर डिपेंडेंट भी डिस्म्यूटेज होता है, आयरन डिपेंडेंट भी होता है, जिंक डिपेंडेंट भी डिस्म्यूटेज होता है. और ये जितने भी डिस्म्यूटेज होते हैं वो इम्यूनिटी के लिए और एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम के लिए हेल्पफुल होते हैं. इट हेल्प्स इन केराटिनाइजेशन. ठीक है. अनदर वन इज कंडीशन जिंक डिफिशियंसी. अगेन जो इंटरेक्शन बोलते हैं, यहाँ भी एक इंटरेक्शन है. If there is a high level of calcium, it can lead to deficiency of zinc. एक किसी भी बुक में, मेनार्ड में, मैकडोनाल्ड में या जीसी एनर्जी में एक बहुत बड़ा एक ग्लोब जैसा चीज देखना, उसमें देखना कि सारे के सारे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. एक बड़ा सा है, उसको आपको पढ़ने में या कम से कम देखने में 10 मिनट लग जाएंगे कि किस मिनरल्स का ऑलमोस्ट सारे मिनरल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी से बैलेंस राशन मीन्स प्रोपोर्शन का भी हम ख्याल करते हैं. नॉट ओनली कि आप केवल क्वांटिटी दे देंगे. क्वांटिटी देने से क्या होगा कि हो सकता है कि उसकी वायबिलिटी को वो इफेक्ट करे. देयरफॉर यू नीड टू कंसीडर कंसंट्रेशन और प्रोपोर्शन एज वेल. सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपको याद रहता होगा दैट इज कैल्शियम एंड फास्फोरस. 2:1 नहीं रखेंगे तो कैल्शियम और फास्फोरस की यूटिलाइजेशन सही नहीं होगी. अगेन इफ देयर इज ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एज कंपेयर्ड टू जिंक, then it can lead to deficiency of zinc. और वहां पे क्या होगा, जिंक वो ज्यादा हो जाता है. ये सर ये दोनों का रेशियो क्या होगा सर? 1.2:1. कैल्शियम और जिंक का 1 और उसके आगे हम चले जाते हैं, then it can lead to deficiency. ठीक है. ये क्या कहें हम, एनिमल स्पेसिफिक होता है, कंडीशन स्पेसिफिक होता है, बट रेशियो इज ऑलमोस्ट लाइक 1.2:1. अनदर वन इज हाई कंसंट्रेशन फाउंड इन एपिथेलियल एपिडर्मल टिश्यू लाइक स्किन और हेयर. ये इसलिए जानना जरूरी है कि इसके आगे एक डिजीज बताएंगे. डिजीज आपको याद होना चाहिए, यहां से वो कोरिलेट आप कर पाओगे. ट्रेस अकर्स इन बोन, मसल एंड ब्लड एंड विस्कर. जिंक जैसे ही होगा, ऑब्जेक्टिव में आज नकल पूछा जाएगा. One common disease in pig due to deficiency of zinc is parakeratosis. याद हो जाने चाहिए, इतना स्लो करा रहा हूं. जिंक के डिफिशियंसी से जो पिग में एक डिजीज होती है उसे कहते हैं क्या, parakeratosis. एंड आई ट्राई माय बेस्ट. ये parakeratosis का मतलब स्किन के लीजन्स जो है वो थिकनिंग होने लग जाते हैं चेहरे पे कहीं पर भी, एंड दिस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ जिंक. स्पेसिफिक लीजन, मेंज लाइक अपीयरेंस. ठीक है. उसके अलावा जो है उसमें और भी चीजें डायरिया, ये हो गया डायरिया, एनोरेक्सिया. ये सारे सिम्टम्स जो है वो हर एक मिनरल्स में होते हैं. ग्रोथ रेट डिक्रीज कर जाएगा, कम होने लग जाएंगे. ये सब केराटिनोसिस हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी. तो जिंक में अगर कोई डिजीज इंपॉर्टेंट है दैट इज parakeratosis. जिंक के साथ ही आपको पूछे जाएंगे कि आप बताओ कि मिनरल्स, 5 मिनरल्स के नाम बताओ और 5 के उसके डिफिशियंसी डिजीज बताओ. तो जिंक याद ना भी हो तो आप इसमें और होता है कंडीशन, जो हम लोग बात करेंगे, पैरोट लाइक कंडीशन. थर्ड मिनरल इज कोबाल्ट. थर्ड मिनरल इज कॉपर. कोबाल्ट का जैसे ही नाम सुनते हैं यहां से एक और सवाल उठता है. एक सवाल पूछे जाएंगे, मिनरल विटामिन इंटर रिलेशनशिप. क्या पूछा मैंने आपसे? मिनरल विटामिन इंटर रिलेशनशिप. सो दिस इज मिनरल व्हिच इज रिलेटेड विद विटामिन. कोबाल्ट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ विटामिन B12. तो आपको अगर एग्जांपल पूछे जाएंगे तो एक एग्जांपल यहां देना, और आगे एक और एग्जांपल है दैट इज सेलेनियम एंड विटामिन E. कौन कौन से नाम बताए आपको? First one is cobalt and vitamin B12, because cobalt is an integral part of vitamin B12. और cobalt नहीं होगा तो एक रिंग आपने पढ़ा होगा दैट इज कोरिन रिंग,
जहाँ पे कि एक चिलेशन, जहाँ पे चिलेशन एक वर्ड सुनते होगे, तो चिलेशन का ये बेस्ट एग्जांपल है कि बीच में सेंट्रल रिंग में कोबाल्ट होता है और उसके आगे वो क्लोरीन रिंग ये फिट रहता है और कोबाल्ट नहीं होगा तो विटामिन बी नहीं होगा, ठीक है। एंड दिस vitamin is or rather this mineral is very much important in case of ruminant because मैं आपसे विटामिन का तो पढ़ाऊंगा ही, कौन कौन से ऐसे विटामिन है जो रुमिनेंट्स को सिंथेसिस कर लेता है, कौन कौन से ऐसे विटामिन है जो रुमिनेंट्स खुद सिंथेसिस कर लेता है, बताइए जल्दी। विटामिन डी, विटामिन डी और आई थिंक के था सर। 10+2 में भी पढ़ा होगा, फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा। B12 B12 तो बता दिया, और के good enough. There are two enzymes, sorry, two vitamins. One is B complex and another one is vitamin K. B complex और K एक सवाल पूछते हैं, विटामिन B complex जितने भी B1 से लेके B12 तक आप पढ़ते हो, और दूसरा this is metabolically essential but not dietary essential for human. क्या पूछ रहा हूं मैं, एक टर्म है, पहले तो मैं आप इधर ही आप मुझे इंगेज कर दिया आपने, यहाँ पे सुन लो पहले, ये रोल क्लियर है कि विटामिन B12 के सिंथेसिस में कोबाल्ट का होना जरूरी है। एंड क्लोरीन रिंग पूछा जाता है कई बार कि वो कौन सा रिंग है, दैट इज क्लोरीन रिंग। और आपके नॉलेज के लिए जरूरत नहीं है, यहाँ जो आयरन से रिलेटेड रिंग है उसको क्या कहते हैं, पोरफायरिन रिंग और क्लोरीन रिंग, जो कि आपके क्लोरोफिल में होता है। ये चिलेशन के आयरन का पोरफायरिन रिंग और मैग्नीशियम का क्लोरीन रिंग। तो रुमिनेंट्स आर एबल टू सिंथेसाइज विटामिन B12, और B12 के सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, विटामिन B12 के सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, उसे कोबाल्ट होना चाहिए। तो रुमेन में अगर कोबाल्ट नहीं होगा तो क्या होगा, विटामिन B12 जो सिंथेसिस कर रहा है रुमेन माइक्रोब्स वो नहीं कर पाएगा। एंड फॉर just for supplementation, oral administration of copper और कोबाल्ट बुलेट, बुलेट पहली बार आपने सुना होगा न्यूट्रिशन में, बुलेट दिया जाता है। बुलेट का मतलब क्या होगा, एक जैसे गोली सा होता है वो रुमेन में डाल दिया जाता है, और रुमेन में डाल देने का मतलब क्या हुआ, आप कह सकते हो कि कोबाल्ट है तो कोबाल्ट सल्फेट हमने दे दिया, तो कोबाल्ट सल्फेट आज आपने दे दिया तो सिंथेसिस आज होगी और सारा का सारा जितनी जरूरत है उतना यूज होगा, उसके बाद एक्सक्रीट होकर बाहर निकल जाएगा। Then it can lead to deficiency of cobalt in one or another day. क्लियर है? तो यहाँ पे क्या करते हैं कि स्लो रिलीज कोबाल्ट को हम कोबाल्ट बुलेट के फॉर्म में देते हैं ताकि वो धीरे धीरे रिलीज हो, और जितनी जरूरत होती है रुमेन माइक्रोब्स विद द हेल्प ऑफ कोबाल्ट और अदर और जो स्केलेटन होते हैं वहां पे यूज करता है। तो कई बार आपको पूछा जाएगा कि विच फॉर्म ऑफ कोबाल्ट इज वेरी मच हेल्पफुल इन विटामिन B12 सिंथेसिस और वेरी मच हेल्पफुल इन रुमिनेंट। तो आप ये भी कह सकते हो कि कोबाल्ट की डिफिशियंसी हो रही है तो मुझे क्या करना है कि आईवी दे दिया, इंट्रावेनस दे दिया या इंजेक्शन के फॉर्म में दे दिया, बट इंजेक्शन के फॉर्म में दोगे तो रुमिनेंट के रुमेन माइक्रोब्स में नहीं जाएगा, रुमेन माइक्रोब्स को नहीं, विटामिन B12 की सिंथेसिस नहीं करेगा, विटामिन B12 तो आपके लिए डाइटरी डिफिशिएंट हो जाएगा। ये जो टर्म मैंने इसके यहाँ कुछ चल रहा है, आवाज आ रही है। Anyway, तो ये एक कई बार पूछा जाएगा डाइटरी एसेंशियल, और इस टर्म को समझा आपने। मेटाबॉलिक एसेंशियल का मतलब कि मेटाबॉलिज्म में विटामिन B12 की जरूरत है लेकिन ऊपर से देने की जरूरत नहीं है, डाइट में देने की जरूरत नहीं है। डाइट में नहीं देने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप उसकी मतलब उसकी जरूरत नहीं हो, ये कंफ्यूज कर जाता है कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स नहीं देना इसका मतलब रुमिनेंट को विटामिन B कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं है, जरूरत है बट दे आर सेल्फ सफिशिएंट टू सिंथेसाइज विटामिन B कॉम्प्लेक्स K, therefore deficiency of vitamin B and K is very rare। क्लियर है? इतना लंबा लेक्चर हो गया इसके लिए। What is the function of cobalt? Cobalt is required, whether cobalt in the form of vitamin B12
is responsible for propionic acid metabolism. Remember, there are three volatile fatty acids. One is acetic acid, propionic acid, and butyric acid. And acetic acid produces how much ATP per gram per mole? अजीत पटेल, एसिटिक एसिड कितना एटीपी प्रोड्यूस करेगा? अनुप्रिया, अनुराग कश्यप, सब सो तो नहीं जाते हो लॉग इन करके? हेलो, एनीवन सुन पा रहे हो मुझे या नहीं? कोई रिस्पॉन्ड तो करो। आकांक्षा, यस सर। यस सर। कितना है? याद होने 2 चाहिए। ATP। कितना? नो 2 सर। नो 2 3 in volatile fatty acid, volatile fatty acid, acetic 10 ATP, propionic 17 ATP and butyric 25 ATP. कैसे करोगे आगे जीआरएफ वगैरह? 3 10 17 एंड 25। अनुप्रिया बताओ फिर से, प्रोपानिक एसिड कितना एटीपी प्रोड्यूस करेगा? वेरी स्लो। एनीवे, तो जो यहाँ पे प्रोपानिक एसिड लीड्स टू एनर्जी या ग्लूकोज सिंथेसिस होगा, फिर बाद में जाके एनर्जी का सिंथेसिस होता है। यहाँ पे कोबाल्ट विटामिन B12 के रूप में जरूरत होता है। और अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो ये पढ़ लेना, हाउ प्रोपानिक एसिड इज कन्वर्टेड। और मैं दिखाता हूँ आपको मेरे कमरे में, अगर देख पाओ, देखा मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोपानिक इन 2 मिनट्स, देखा वीडियो से पता चला दिख रहा है? नो नो सर। ऑफलाइन में फिर बात करेंगे इसके बारे में। सो प्रोपानिक एसिड इज कन्वर्टेड टू प्रोपानॉल कोएंजाइम, देन सक्सिनॉल कोएंजाइम, मिथाइल फेनोल कोएंजाइम, और वहां पे कहीं ना कहीं B12 का रोल होता है। देयरफॉर अगर मैं पूछूं कि विटामिन B12 या कोबाल्ट का क्या रोल है, दिस इज हेल्पफुल इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म, पार्टिकुलरली इन रूमिनेंट एंड पार्टिकुलरली इन प्रोपानिक एसिड मेटाबॉलिज्म। तो इसके डिफिशियंसी से क्या होगा? There is one disease known as wasting disease or pinning disease or salt sick or bush sickness. यहाँ पे जो हाइट बाउंड कंडीशन आपको दिख रहा है, this is due to deficiency of energy and particularly energy deficiency जो है वो प्रोपानिक एसिड से होगा। तो etiology is vitamin B12 or cobalt and symptoms are emaciation, कमजोर दिखने लगेगा, एनीमिया होगा, लिस्टलेसनेस होगा, ये टर्म भी आपने सुना होगा, जस्ट लैक ऑफ एनर्जी, लगेगा कि कुछ शरीर में काम ही नहीं है। और जो एक विटामिन B12 का आपने बहुत ही 10+2 में मेडिकल तैयारी में पढ़ा होगा, दैट इज एनीमिया, ठीक है ना, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। दैट्स व्हाई विटामिन B12 को क्या कहते हैं? एंटी एनिमल फैक्टर पढ़ा है इसके लिए, विटामिन B12 के लिए? सर एंटी पर्निशन नहीं, ठीक है। And that's why vitamin B12 का जो मेजर सोर्स है that is of animal origin. Another one is manganese. Manganese बहुत सारे एंजाइम्स में ये हेल्पफुल होता है, खास करके आर्जिनिन, आर्जिनिन के सिंथेसिस में या आर्जिनिन के मेटाबॉलिज्म में, डाइसल्फाइड, थायमिनीज, थायमिनीज अगेन थियामीन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे इसके बारे में चर्चा करेंगे। एंड ड्यू टू their activity in enzyme system, it is helpful in oxidative phosphorylation. और एक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका कि डिजीज से कोरिलेशन दिखाएंगे, this is needed for glucosyl transferase. and glucosyl transferase कहाँ जरूरत होता है? जहाँ म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, टेंडन बनते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन बनते हैं, वहां पे ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज काम करता है। और इसके कमी से पोल्ट्री में खास करके डिफिशियंसी, फार्म एनिमल का मतलब कैटल, बफेलो और गोट से इस पे कम होता है। बट इन केस ऑफ पोल्ट्री डिफिशियंसी डिजीज ऑफ मैग्नीज इज कॉमन
due to high requirement of manganese as compared to cattle and buffalo. एक डिजीज है, मैं पार्टिकुलर डिजीज के बारे में केवल बात करूंगा, पेरोसिस और स्लिप टेंडन। मैंगनीज की डिफिशियंसी से खास करके पोल्ट्री में एक डिजीज होता है जिसे कहते हैं स्लिप टेंडन और पेरोसिस। और अगर एनाटॉमी थोड़ा याद होगा तो वहां पे क्या है, एक कॉन्डाइल, मैं फोटोग्राफ आगे दिखाऊंगा कि ये एचिल्स टेंडन है जो कि अपने कॉन्डाइल से स्लिप कर जाता है ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ, जो पहले हमने बात किया था, ग्लूकोसाइल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी कम होती है, और जब कम होती है तो टेंडन में कहीं ना कहीं वीकनेस आ जाती है और ये अटैचमेंट की कमी हो जाती है, तो अपने कॉन्डाइल से ये स्लिप कर जाता है। और जब स्लिप कर जाता है तो लेग छोटा हो जाता है, या यूं कह लो कि टेंडन वीक पड़ गया, कॉन्डाइल से हट गया, तो क्या होगा, वो एनिमल मूव नहीं कर पाता है, और मूव नहीं कर पाया तो क्या होगा, बर्ड्स फिर खाना नहीं खा पाएगी, फाइनली इट विल लीड टू डेथ। ठीक है, तो एक कुछ याद हो ना हो, deficiency of manganese in poultry leads to parosis or slip tendons. Another one is parrot beak. Parrot beak का क्या मतलब हुआ? Parrot beak देखा और chicken beak में क्या डिफरेंस है? कोई बताओ? तो पैरट का सर मुड़ा होता है, कर्व्ड बीक। कर्व होता है, और कर्व से तो देखा होगा कि नीचे वाला जो होता है वो छोटा होता है और ऊपर वाला बीक जो है वो बड़ा होता है। बट इन केस ऑफ चिकन कैसा होता है? सर दोनों लगभग सेम लेंथ का होता है और थोड़ा स्ट्रेट पॉइंटेड होता है। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि नीचे वाला जो होता है वो बीक जो है वो छोटा हो जाता है। That's why this condition can be known as parrot beaks in chicken. ठीक है, तो ये दो डिजीज खास करके स्लिप टेंडन याद रखना। मैंगनीज अगर मैं पूछूं तो आपको नाम लेना होगा स्लिप टेंडन और पेरोसिस, एंड दिस इज ड्यू टू डिफिशियंसीज ऑफ मैंगनीज। और यहाँ पे इटियोलॉजी क्या है, एचिल्स टेंडेंस फ्रॉम कॉन्डक्ट। देखो एक चीज क्लियर हो लो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है इतने की, एक क्लास में मैं सम अप कर सकता था कि ये डिजीज है, ये मिनरल्स है, ये विटामिन है, लेकिन बी श्योर इतना डिटेल में आप तो नहीं पढ़ पाएंगे। आगे आपके पास इतनी समय नहीं है कि आप ये सारे, आपको सिंपली बताया जाएगा कि मैंगनीज की डिफिशियंसी से ये हो गया, एचिल्स टेंडेंस हो गए, यहाँ पे पेरोसिस हो गया। तो यहाँ पे देखो ये जो कॉन्डाइल की बात कर रहा था ना, एनाटॉमी भी थोड़ा सा पढ़ लो, ये पीजी लेवल की पढ़ाई आपको, तो यहाँ पे स्लिप कर जाते हैं, और जब ये होगा तो क्या होगा, हॉप एंड ऐसे आने लगेगा, एनिमल मूव नहीं कर पाएगी, और दिस कैन लीड टू ऑफ फीट तक जा ही नहीं पाएगा, तो क्या होगा, डेथ हो जाएगा। ओके, मुझे लग रहा है खत्म ही कर दो। फ्लोरीन में, फ्लोरीन की टॉक्सिसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके पहले एक और है फ्लोरीन। डेंटल कैरीज पढ़ा होगा आपने, डेंटल कैरीज इसके सिम्टम्स से होते हैं, और फ्लोरीन इज अगेन ए टॉक्सिक एलिमेंट एज वेल। मोलिब्डेनम, ये माइनर मिनरल्स हैं। मोलिब्डेनम का जैसे ही नाम याद करते हैं, दिस इज रिस्पांसिबल फॉर यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म या प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, molybdenum is integral part of xanthine oxidase, and xanthine oxidase is responsible for purine metabolism। या आपके लिए कह दूं तो जो यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म होगा particularly in case of poultry, so molybdenum is responsible for purine metabolism। और वो साइकिल आप बताओगे कि क्या कहते हैं उसको, यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म, यूरिया मेटाबॉलिज्म का जो साइकिल होता है, बायोकेमिकल साइकिल, उसको क्या कहते हैं, नहीं याद है? ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल ऑर्निथिन साइकिल। और कोरी साइकिल सर वो जो फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। तो ये ऑर्निथिन और वहां पे अर्जिनिन और ये सारे जो है रिस्पांसिबल होते हैं। थोड़ा बायोकेमिस्ट्री मुझे लग रहा है इतना अच्छा पढ़ाया होगा फिर भी वीक है, और बायोकेमिस्ट्री ठीक से नहीं पढ़ा, फिजियोलॉजी ठीक से नहीं पढ़ा, तो एनिमल न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो अभी जो कुछ पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा बैक में डिक्स फिजियोलॉजी उल्टा लो, बायोकेमिस्ट्री के लेनिंगर उल्टा लो, जो कुछ भी है उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे ना, तो ये चीजें ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, इसके कमी से एक डिजीज होता है जिसको टर्ड पास्चर कहते हैं, बट मोलिब्डेनम में ये इंपॉर्टेंट है। लगता है कि सेलेनियम आपको
सेलेनियम में जब विटामिन ई पढ़ाऊंगा तब बात करूंगा। सेलेनियम के रिक्वायरमेंट तो कम है इसके, लेकिन टॉक्सिसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेलेनियम थोड़ा सा, जब तक मेरे पास समय है 1 मिनट से कम ही है। सेलेनियम कुछ एक टर्म सुना होगा एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट खास करके आज के जमाने में इसका बहुत नाम आपने सुना होगा कि कुछ भी करो तो आंवला खा लो, तो नीम खा लो, तो गिलोई खा लो, और सारे चीज एंटीऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस इम्यूनोलॉजी अगर पंकज ने पढ़ाना शुरू कर दिया होगा तो आप इम्यूनिटी और इम्यूनिटी में भी सेल मीडिएटेड और दूसरे इम्यूनिटी पढ़ोगे तो वहां पे एंटीऑक्सीडेंट का बहुत रोल होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट भी 2 तरह के होते हैं, एक नेचुरल और दूसरा सिंथेटिक। तो नेचुरल में सेलेनियम का भी नाम आता है, विटामिन ई का भी नाम आता है, इसलिए तो खास करके गर्ल्स को ज्यादा देखोगे कि आप एवियन की टैबलेट खाती है, दैट इज नथिंग बट विटामिन ई, एंड विटामिन ई इज रिस्पांसिबल फॉर एंटीऑक्सीडेशन, एंटी एजिंग एजेंट भी होते हैं। तो सेलेनियम जो है वो विटामिन ई का इंटीग्रल पार्ट है, तो इसको हम डिटेल में बात करेंगे, अभी कम समय में नहीं होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड क्वेरी feel free to ask. अभी तक सर बोलिए। केराटोसिस में बोलो, आवाज नहीं। केराटोसिस में केराटिन प्रोटीन अफेक्टेड होता है। स्किन की जो केराटिन